All right. Okay. So I'm going to share about living our life as we are living in the last days. तो आज हम देखेंगे कि कैसे हमें अपना जीवन जीना है इन अंतिम दिनों में, Okay, living like we are living in our life. जैसे कि हम अपने आखिरी दिनों, अंतिम दिनों में जी रहे। So for I got this verse from Romans chapter 13. उसके लिए हम आइए हम देखें वचन से रोमियो का 13वां अध्याय, And we are going to read from 18 to 13. Sorry, 8 to 13. So हम देखेंगे 8वें वचन से 13वां वचन, रोमियो का 13वां अध्याय वचन 8। let not debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. So he who loves his fellow man has fulfilled the law. The commandments: do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not covet, and whatever other commandments there may be are summed up in one rule: love your neighbor as yourself. Love does no harm to its neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. And do this, understanding the present time. The hour has come for you to wake up from the slumber, because your salvation is near now than when we first believed. The night is nearly over, the day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourself with the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desires of the sinful nature. हम देखेंगे रोमियो का 13वां अध्याय वचन 8 से आगे। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसीलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। और समय को पहचान कर ऐसे ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसे दिन को सोता है वैसे ही हम सीधे चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, न व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़ा और दाह में। Okay, verse 13 also. Okay. No, 12. Okay, let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father God, we thank you for this word. पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस वचन के लिए। Holy Spirit, you reveal your things to us. पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते कि आप हमें सिखाइए, आप अपनी बातें हमें बताइए। Lord, you are our teacher. आप हमारे शिक्षक हो। And help us to understand your word clearly. और हमारी मदद कर प्रभु कि हम आपके वचन को समझ पाए प्रभु। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. So we are in Romans. तो हम रोमियो के किताब में है। So there's a famous phrase says, friends, Romans, countrymen, lend me your ears. तो ऐसा बहुत मशहूर कहावत है कि मेरी आवाज को सुनो मेरे भाई बंधु और सभी जन। You know, these words are from William Shakespeare in his one of his drama. और विलियम शेक्सपियर का एक मशहूर ड्रामा है और उसमें ये डायलॉग पाया जाता है। Okay, so I want you to lend your ears. तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ध्यान से सुनिए। Give me your ears today.
कान लगा के मुझे सुन। Give me your ears today. हाँ, कान लगाना उसको कहते हैं। I will say, I want your ears today. हिंदी I want your ears मतलब ध्यान से सुनो। today. मैं बोल रहा हूँ मुझे आपका कान दे दो. Okay. निकाल के थोड़ी देंगे। Okay. So when we read Romans and when we study Romans, we cannot read just like that. We need to concentrate and really, make an effort to understand. तो जब हम इस किताब को पढ़ते हैं, हम ऐसे ही नहीं पढ़ सकते, हमें ध्यान लगा के समझ के इसे पढ़ना चाहिए। And from chapter 12 onwards in Romans, और रोमियो का 12वां अध्याय से to the end, it talks about the practical application of what he shared from chapter 1 to 11. तो जो बातें उन्होंने पहले अध्याय से 11वें अध्याय सिखाया, अब उसे हम अपने जीवन में कैसे लागू करें, ये बात हमें मिलता है रोमियो के 12वें अध्याय से उनके अंत के अध्याय तक। So before chapter 12, he talks about the beautiful doctrine of salvation. और 12वें अध्याय के पहले जो है लेखक एक वो सुंदर उद्धार के बारे में हमें बताता है, How we are justified by the blood of Jesus, कैसे हमें धर्मी ठहराया गया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, and by his grace, we are saved, and now we are being sanctified. और उनके अनुग्रह के कारण हमारा उद्धार हुआ है और अब हमें पवित्र किया जा रहा है, And how we need to live by his spirit now. और अभी हमें उनके पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे जीना है। And my favorite chapter is chapter 8 actually in Romans. और फ्रैंकी का बहुत मनपसंद अध्याय है रोमियो का 8वां अध्याय। It talks about how we should live by the spirit. और वो कहता है हमें कि कैसे हमें पवित्र आत्मा के द्वारा जीना है। Here Paul is writing two most important practical application of those doctrines in our life. और यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस जो है हमें बता रहे हैं कि कैसे हमें इन जो हमने सीखा है शास्त्र में से कैसे अब हमें अपने जीवन में लागू करना है। Two things. दो बातें। But I have 3 points. लेकिन आज हमारे 3 पॉइंट्स है। Okay. And so the first point is, तो पहला पॉइंट है, we are living in, we have to live like we are living in the last days. हमें ऐसे जीना है जैसे हमारे अंत के दिन आ गए हैं और बस हमें वैसे ही जीना है। We are in the last days. हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। So why we talk about last days? और हम अंत के दिनों के बारे में क्यों बात करते हैं? If you read Romans chapter 13 verse 11, it says, and do this, understanding the present time, the hour has come for you to wake up from your slumber, because your salvation is nearer now than when we first believed. क्योंकि रोमियो का 13वां अध्याय और 11वें वचन में लिखा है, और समय को पहचान कर ऐसे ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार और निकट है। So Paul is want you and me to consider, तो पौलुस चाहता है कि हम समझे कि the two applications that I am going to share today, तो दो बातें जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, to take it so seriously, knowing about the last days. और हम इसे गंभीरता से ले, क्योंकि हम ये समझे कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। We are living and we are living as a time, and our life itself is we are close to the coming of Jesus. और अब जिस समय में हम जी रहे हैं, हम काफी निकट आ गए हैं उस समय के जहाँ पे यीशु मसीह वापस आने वाला है। Or we are coming to that place where we are going to live with Jesus forever. और या आप ये कह सकते हो कि हम उस समय के काफी निकट आ पहुंचे हैं जहाँ पे हम अब यीशु मसीह के साथ सदा सर्वदा जीने वाले हैं। So Romans chapter 13 verse 12, first part of that, it says that
the night is nearly over, the day is almost there. इसीलिए उसी अध्याय का 12वां वचन में लिखा है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। So we need to understand we are living in the last days. हमें समझना है कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। When we look at our personal life, जब हम अपना व्यक्तिगत जीवन को देखते हैं, we are near to our full revelation of our salvation. हम एकदम निकट पहुंच गए हैं कि हमारा जो विश्वास, जो उद्धार है, वो अब प्रकट होने ही वाला है। Yeah, we are saved, हाँ, हमारा उद्धार हो चुका है, but our life with Jesus is not started. It will happen when we be in heaven with Him. लेकिन हमारा जो यीशु मसीह के साथ जीवन का शुरुआत जो है वो हुआ नहीं है। वो तब होगा जब हम उनके साथ स्वर्ग में मिलेंगे। So verse 12, second part, it says, so let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. इसीलिए 12वां वचन का आखिरी भाग में लिखा है, इसलिए हम अंधकार के कामों को बाजू में रख के ज्योति की हथियार बांध ले। There is a time, we will be in heaven where there won't be any sickness, there won't be any trouble, there won't be any sin, and we will have perfect peace. और वो समय आने वाला है जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे, वहां पे कोई दुख नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, बस शांति होगी वहां पे। So he is saying here that our salvation is nearer now than when we first believed in verse 11. 11वें वचन का आखिरी भाग में ये इसीलिए यही लिखा है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। What that mean is this: इसका मतलब क्या हुआ? every day we are one day more close to our life with Jesus. हर दिन जैसे बीतता जाता है, हम और निकट आते हैं और करीब आते हैं उस दिन के जब हम यीशु मसीह को मिलेंगे और फिर हम उनके साथ सदा सर्वदा जिएंगे। Our life here is a pilgrimage. हमारा जो यहाँ पे जीवन है वो एक यात्रा है, कुछ समय के लिए है। We could leave any time and to be with God. हम कभी भी इस यात्रा को छोड़ के हम परमेश्वर के साथ एक साथ हो सकते हैं। And one thing of the many things we are not sure in this life is our death, when the death will be. एक बात है, एक्चुअली बहुत सारी बातें हैं जो हम जानते नहीं है, और उनमें से एक बात यह भी है कि हम नहीं जानते कि हमारा मृत्यु किस क्षण होने वाला है। Some of us are living like we are never going to leave this earth. हम में से कुछ जन ऐसे जीते कि हम हमेशा हमेशा के लिए बस इस पृथ्वी पे जीने वाले हैं, यहाँ से हटने वाले ही नहीं हैं। But I want to tell you, we are living each day closer to our life with Jesus. लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे दिन बीतता जाता है, हम और करीब आते हैं उस दिन के जहाँ पे हम यीशु मसीह से मिलने वाले हैं। And we don't know even our death when it is, so that much close we are. हम ये भी नहीं जानते कि हम कब मरने वाले हैं, इतने निकट पहुंच गए हैं हम तो। Some people, if you ask them the age, they won't tell their age. कुछ लोगों को अगर आप पूछेंगे आपका उम्र क्या है, वो बिल्कुल नहीं बताएंगे। Some people there, if you ask them their and how old they are, their years goes down. और अगर आप किसी को पूछते कि आपका उम्र क्या है, तो और कम होता जाता है। Okay, but it's good to go on to a funeral. अच्छा होता है कि जब हम अंतिम संस्कार, किसी के अंतिम संस्कार या फ्यूनरल में जाते हैं, There we will have a revelation of that one day we have to go. वहाँ पे बात समझ में आती है कि एक दिन हमें भी ऐसे ही जाना है। So the first thing he is saying, Paul is saying here, we are coming close. Every day is like we are coming close to our life with Jesus. तो यहाँ पे पौलुस हमसे कहता है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि समझो, हर दिन जैसे हम जीते, जैसे दिन बीतता जाता है, हम और निकट आते हैं उस दिन के जहाँ पे हम यीशु मसीह से मिलने वाले हैं। So he's saying in verse 12 part, second part, part B says, so wake up from your sleep. इसीलिए वो कहता है अपने नींद से जागो। It says, put aside the deeds of darkness
and put on the armor of light. और 12वें वचन के आखिरी भाग में लिखा है, अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध ले। Stop living a casual life. ऐसे साधारण सा हल्के रूप से मत जियो। Take life seriously. हमें अपना जीवन को गंभीरता से लेना है। So he's continuing with next verses how we should live. अब वो हमें बताता है कि हमें कैसे जीना है। The first thing, सबसे पहली बात, now I have 2 points. The first thing how we should live. अब कि हमें इस जीवन को कैसे जीना है। The first thing is loving one another, as you are living your last days. कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए जैसे हम इन अंत के दिनों में जी रहे हैं। That is what verse 8 to 10 says. यही तो 8वें वचन से 10वें वचन हमें बताती This है। is the first application. ये सबसे पहला बात है जो हमें लागू करना अपने जीवन It में। says, let not debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. 8वें वचन में लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। So he's saying, start with saying that you should not have any debts. तो सबसे पहली बात कि और हमें कर्जदार नहीं बनना है। You should not have any debt of money or debt of you have taken something from somebody and keeping it to yourself. Please give it all back. हमें कर्जा नहीं लेना है, पैसे नहीं लेना है एक दूसरे से, या किसी और का चीज हमने ले लिया है, कृपया करके वापस दे दीजिए। He's saying you should not have any other debts. पौलुस यहाँ पे हमसे कहता है कि किसी बात में किसी के कर्जा न हो। Please clear all your debts. जो भी कर्जा है वो चुकता कर दो। But he's saying, but you and me have a debt. लेकिन वो ये कहने के बाद भी वो कहता है एक कर्ज तो रहेगा हम। And you must keep giving that. और आपको वो देना जरूरी है। The more you give, you if you start giving it, more it will be there to give. क्योंकि आप जितना वापस दोगे और आपके पास होगा। And you have to keep on giving it. और फिर और वो चुकाते जाना है। It is not going to end. वो कभी खत्म नहीं होगा। And so he's saying you must continue, accept the continuing debt to love one another. पौलुस कहता है आपस के प्रेम को छोड़ किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। English the word is continuing debt. अंग्रेजी में लिखा है कि वो चलता ही जाए, ये जो कर्जा है हमारा ये आगे चलता ही जाएगा। We will always have this debt. हमेशा ये कर्ज रहेगा हमारे ऊपर। Debt of love. कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। It is like in our compound there is a well. जैसे कि हमारे जो बिल्डिंग के कंपाउंड में वहाँ पे कुआं है। Okay, and sometimes people from outside, people from our shops outside, they come for water. और कभी-कभी क्या होता है जो दुकानदार है, जो बिल्डिंग के बाहर जो दुकानें हैं वे लोग आते हैं पानी लेने के लिए। So we give them water. तो हम देते हैं उन्हें पानी। But we give them water. लेकिन जितना हम उन्हें पानी देते हैं उस कुएं से, more water is coming in that well. और पानी उस कुएं में इकट्ठा हो जाता है। It is never going to end. वो कभी खत्म नहीं होता है। The more we give them, जितना और हम उन्हें देते हैं, it is there forever kind of thing. कुएं में और पानी आ जाता है। So we have this debt of love. तो हमारे पास भी एक कर्ज है, प्रेम का कर्ज। So we have this love of God in us. और परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है। We have received this love. ये हमने स्वीकारा है परमेश्वर से। Through our salvation. क्योंकि हमारा उद्धार हुआ है। In Ephesians chapter 2, इफिसियों का 2रा अध्याय verse 4 and 5. 4 और 5वां वचन में हम आएंगे। Let's turn to Ephesians chapter 4. इफिसियों का 4 अध्याय verse 4 and 5. Ephesians chapter, what I said? 2. इफिसियों का 2रा अध्याय 4 वचन। Yeah. Ephesians chapter 2 and verse 4. 4 and 5. Yes. He says there, let me read. But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in our transgression. It is by his grace you have been saved. इफिसियों का 2रा अध्याय 4 और 5वां वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे
उसने हमसे प्रेम किया जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। So here is he saying, because of his great love, तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के प्रेम के कारण we are saved. हमारा उद्धार हुआ है। So his love has come in our life. तो उनका प्रेम जो है हमारे जीवन में आ चुका है। God's love is a never-ending love. परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम है जो कभी खत्म नहीं होता है, That love is coming in your heart. और वही प्रेम आपके हृदय में आ चुका So है। you cannot say, "Oh, now I loved enough. I cannot love more." तो आप कभी भी ऐसे नहीं कह सकते कि बस मैंने बहुत प्रेम किया है, बस अब और नहीं। No, you have more love in your heart, नहीं, और प्रेम तो है आपके हृदय में, and you can give that love. You have that debt of giving. और इसलिए आपके ऊपर वो कर्ज है कि आप दूसरों को प्रेम करते जाइए, And you have to give that love. और आपको वो देना ही है। Otherwise, you will be choked with love. नहीं तो आपके अंदर वो प्रेम इतना भर जाएगा। Okay, it is important we give it. बहुत जरूरी है कि हम देते जाएं। Okay, and if you are a person who have not received the love of God, today believe in Jesus that he died on the cross for your sin, and you will be able to receive God's love in your life. और अगर आप वो व्यक्ति हो जिन्होंने अब तक यीशु मसीह का प्रेम को स्वीकार नहीं किया है, तो आज वो दिन है, आप उन्हें अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए और उनके प्रेम को भी अपने जीवन में स्वीकार कीजिए। There are different aspects of love. प्रेम के विषय में बहुत अलग-अलग बातें हैं। We love our family. हम अपने परिवार से प्रेम करते We हैं, love the people in the church, कलीसिया के लोगों से प्रेम करते हैं, and in a workplace. जहाँ पे हम काम करते हैं, We love our children. हमारे बच्चों से हम प्रेम करते हैं। But here Paul is talking about two aspects of love. लेकिन यहाँ पे पौलुस जो है प्रेम के बारे में दो बातें हमें बताती है। If you see verse 8, 8वें वचन में अगर आप आएंगे, let me come there. Romans chapter 13. Sorry. रोमियो का 13वां अध्याय और 8वां वचन। And he says, let not that remain outstanding except the continuing debt to love one another. For he who loves his fellow man has fulfilled the law. 8वां वचन में लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसने व्यवस्था पूरा किया है। So here a word used is fellow man. यहाँ पे वो शब्द है कि दूसरों से, For he who loves his fellow men. कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। The fellow men in other translations, they your Bible may have a different word, but it is not talking about other believers actually. ये जो दूसरों से प्रेम करना है, ये सिर्फ दूसरे विश्वासी के बारे में नहीं है। Actually there is another meaning for this word is stranger. और इस शब्द का दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि जो अनजान लोग हैं, fellow men, मतलब सभी लोग से, the people and other people are also human beings. They are also fellow men, and they may be strangers. और दूसरे लोग शायद हमसे वो अजनबी है, हम नहीं जानते उन्हें, लेकिन उनके बारे में भी यहाँ पे लिखा है। And it is not talking about the church people. So he's telling the church, to strangers you should love. तो यहाँ पे आपको समझना है कि सिर्फ कलीसिया के बारे में नहीं है, लेकिन पौलुस जो है कलीसिया को लिख रहा है और कह रहा है उनसे कि हमें सभी से, इस पृथ्वी पे जितने भी मानव है, जितने भी लोग हैं, सभी से हमें प्रेम करना है। Especially for us people outside our family, outside our church. खास करके हमारे लिए जो हमारे कलीसिया के बाहर है, हमारे परिवार से जुड़े हुए नहीं है, we need to love them. हमें उनसे भी प्रेम रखना है। we need to help them. We need to share our salvation with them. हमें उनकी मदद करना है, हमें सुसमाचार भी उन्हें पहुंचाना है। Sharing about the cross of Jesus to others, the strangers, other people are important. दूसरों को यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, उद्धार के बारे में बताना बहुत जरूरी है। And I will tell you, if you say a few people and you say it's over, no, there will be more people and there will be more love in your heart
to tell them. अगर आप सोचो कि देखो मैंने बहुत किया है, मैंने सुसमाचार बहुत लोगों को दिया है, अब बस हो गया, बिल्कुल नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा है, और लोग हैं, और प्यार आ जाएगा आपके हृदय में, ताकि आप और लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएं। And another aspect of love he's telling here is love also means not doing sin in your life. और एक और बात प्रेम के बारे में वो बता रहे हैं कि प्रेम का मतलब यह भी है कि हम पाप न करें, And also not hurting others. ताकि हम दूसरों के प्रति बुराई न करें। If you read verse 9 and 10, अगर आप 9 और 10 वचन को पढ़े, it says commandments: do not commit adultery, do not commit murder, do not steal, do not covet. Whatever other command there may be are summed up in one rule: love your neighbor as yourself. Love does not harm to his neighbor. Therefore, love is the fulfillment of law. रोमियो का 13वां अध्याय और 9वां 10वां वचन में लिखा है, क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो, तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। You know, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। okay, so and love is not doing sin as well as not hurting others. तो प्रेम का यह भी मतलब है कि हम पाप न करें और दूसरों की बुराई या फिर उसके प्रति कुछ भी बुराई न करें। You know, love fulfills all law. यहाँ पे लिखा है प्रेम पूरी व्यवस्था को पूरा करता है। So it is like laws are inside the law. जैसे कि जो भी व्यवस्था है प्रेम के अंदर है। You know, it is like if I have to give you 1 lakh of rupees, सोचो अगर फ्रैंकी को आपको 1 लाख रुपए देना है, okay, and I am giving you in a box. In a box, I am putting that 1 lakh rupees and giving और you. फ्रैंकी क्या करता है, एक बॉक्स ले लेता है और उसके अंदर वो 1 लाख रुपए डाल देता है And close it और फिर nicely. उसको अच्छे से रिबन से बांध लेता है। You know, and I am giving you this box. और फ्रैंकी ने ये बॉक्स आपको उठा के दे दिया And I said, and I am saying, and I am giving you 1 lakh of rupees. और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने आपको ये 1 लाख रुपए दे दिया, But you don't know what inside. लेकिन आपको तो पता नहीं ना बॉक्स के अंदर क्या है। You know, and you know, that is like, you know, love is. यही तो प्रेम है। All the laws are bound and put it in this box called love. जो भी व्यवस्था है उसे अच्छी तरह से बांध के इस बॉक्स के अंदर जो प्रेम है उसके अंदर डाल दिया गया है। And when you love one another, when you are not sinning, you know, when you are showing love to others, you are fulfilling every laws. 1, 2, 3, 4, 5, 6. All the laws you are fulfilling when you love. तो जब आप किसी से प्रेम करते हो, आप दूसरों को प्रेम दिखाते हो, आप क्या कर रहे हो, जो भी व्यवस्था है सारे के सारे आप उसे पूरा कर रहे हो, आप पाप नहीं कर रहे हो। Love is the easy way to fulfill God's law. प्रेम करना सबसे आसान बात है या आसान तरीका है परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करने में। You know, law is good, व्यवस्था अच्छा है, love is better. लेकिन प्रेम जो है उससे बेहतर है। So let us love God and one another. इसीलिए हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और एक दूसरे से प्रेम करना जरूरी है। Let's love our family, church, not only that, outsiders. हम अपने परिवार से प्रेम करें, अपने कलीसिया के लोगों से प्रेम करें, लेकिन वहां तक रुकना नहीं है, दूसरों से भी प्रेम रखना जरूरी है। And the second application and my last point, और आखिरी पॉइंट, very important, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, that is living a holy life as you are living in your last कि days. जैसे हम ये अंत के दिनों में जी रहे हैं, हमें एक पवित्र जीवन जीना जरूरी है। And the context he is saying, we are approaching, every day is, you know, we don't know when we are going to die, and that is the context he is saying. और ये बातें वो क्यों बता रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि देखो हम और निकट पहुंच रहे हैं, हम नहीं जानते कि हमारा मृत्यु
कब होने वाला है और हम और नजदीक पहुंच रहे हैं। It is important we live a holy life. इसलिए हमें एक पवित्र जीवन जीना है। He started talking to the Roman church. ये रोमियो की कलीसिया को बता रहा है। I was studying about the Roman culture and city of that time. और फ्रैंकी जो है पढ़ाई कर रहे थे कि रोमियो देश और उनका जो संस्कृति और क्या था उस समय के बारे में। During the time of Paul, पौलुस के समय में, and we know good things about the Roman city. रोमियो के शहर के बारे में हम बहुत सारी अच्छी बातें हम जानते हैं। They had good roads that time. उन दिनों में उनके रास्ते बहुत ही अच्छे थे। They were the first people to have a proper government. और वे पहले लोग हैं जिनका एक अच्छा सा सरकार था। They had the Colosseums. और कोलोसियम्स थे उनके, ग्लैडिएटर्स थे। They had great rulers like Julius Caesar. जूलियस सीजर जैसे बड़े बड़े राजा थे। Paul's time, the Rome was like a superpower. और पौलुस के समय में जो है ये रोमियो देश एक सुपर पावर जैसे था। But there is an other side of this city. लेकिन इस कहानी का जो शहर के बारे में दूसरा पहलू भी है। And this city was very big city. ये बहुत ही बड़ा शहर था। And this city also had slums. लेकिन इस शहर में जो है छोटे छोटे बस्तियां भी थे। Not only king's palaces, we only hear about good things about the past kingdoms or in the history. और हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं कि राजा का एक महल था, वो इतना विशाल था। We don't know how the poor people lived, how the common people lived. हम ये नहीं जानते कि उन दिनों के गरीब कैसे जीते थे, how the common people lived, और आम आदमी कैसे जीते थे, what was the culture. उनकी संस्कृति कैसी थी। So when this church was there, तो जब ये कलीसिया वहाँ पे स्थापित हुई, they had small streets, और छोटे छोटे गलियां भी थे, small houses close by. छोटे छोटे घर भी थे जो एक दूसरे के एकदम करीब था। The streets were dirty. रास्ते एकदम गंदे थे। People were sick. और लोग बीमार भी थे। There was street prostitution. और वहाँ पे सड़क के किनारे वैश्या भी खड़े रहते थे। They had a common bath. और ऐसे एक जगह थी जहाँ पे सभी लोग एक साथ आके नहाते थे। Can you believe common bath? सोच सकते हो इसके बारे में? Can you believe common toilets? एक टॉयलेट है और सभी लोग आते हैं वहाँ पे। No, in a room there are so many toilets. लेकिन उन दिनों में एक ही कमरा था और उसमें अलग-अलग टॉयलेट्स थे। And for the public. और ये आम लोगों के लिए थी। There were broken families. और टूटे हुए रिश्ते, टूटे हुए परिवार थे। Slaves were there. दास थे। And extramarital affairs were there. व्यभिचार भी होता था। Drinking. लोग पियक्कड़ भी थे। And homosexuality. और एक ही लिंग में रिश्ता भी होता था। Immigrants from all over the world was there. और दूसरे देश से भी लोग आते थे यहाँ पे। They were idol worship. वो मूर्ति पूजक भी थे। Even they were asked to worship the king. और उनसे कहा गया था कि राजा का उनको उपासना और पूजा करनी थी। They were rich. Rich people had very wild stories, which we have never heard of. और जो अमीर लोग थे वो ऐसे ऐसे कार्यों में लगे रहते थे जिसके बारे में हमने सुना भी नहीं। And that is the time this church was among these people. और इन सब के बीच में कलीसिया वहाँ पे स्थापित होती है। So Paul is telling this church in this city, the people of God, in all the circumstances around you, how you should live. तो पौलुस कलीसिया से कह रहा है, हाँ ये सब हो रहा है आपके आजू बाजू में, लेकिन आपको ऐसे जीना है। How believers should live. कैसे हम विश्वासी लोगों को जीना है। And if you see the world, the cities have similar kind of culture. आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो हमारे पूरे विश्व में जो बड़े बड़े शहर में, उन शहरों में भी यही बातें होती है। Even in our Mumbai city where we are living, we see all these things. हमारे मुंबई शहर में भी हम इन्हीं बातों को देखते हैं। And every city have its evil practices. हर शहर में बुरी बातें भी होती है। And when we come to verse 12 and B, he says that live like, take the armor of light and leave the darkness. इसीलिए जब हम रोमियो का 13वां अध्याय 12वें वचन में आ जाते हैं,
12, okay, sorry. रोमियो का 13वां अध्याय 12वें वचन में आते हैं, पौलुस हमसे कहते हैं कि इसीलिए हमें अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांधना है। You know, uh, and leaving the darkness and taking the light and living in the light. हमें अंधकार की जो बातें हैं, जो बुराई की बातें हैं, उसे छोड़ना है और ज्योति के हथियार को बांध लेना है। And so here he talks about two things we need, and a few things we need to leave तो यहाँ पे पौलुस हमसे कहता है हमें किन बातों को छोड़ना है to live a holy life. ताकि हम एक पवित्र जीवन जी सके। Verse 13 he says, live decently as the daytime, not in orgies and drunkenness. 13वां वचन में लिखा है, जैसे दिन को सोता है वैसे ही हमें सीधे चाल चलना है, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार, ना लुचपन The में। only first thing we will take, orgies and drunkenness. तो पहली बात हम देखते हैं कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, This was common in Roman culture. ये जो बातें है रोमियो के संस्कृति में आम बात थी। They used to do all these things very openly. वो खुलेआम ये सब करते थे। Our life, our world is not different now. और आज जो हम जीते हैं कुछ अलग नहीं है, यही बातें अभी भी होती है। People living in sexual things and in drunkenness, in drugs. और लोग जो है नशा करते हैं, पियक्कड़ है और व्यभिचार करते हैं। Wild parties. और आपको पता है कि जब पार्टी होती है तो कैसा होता है और क्या-क्या होता है उसमें। After drinking, they don't know what they do. पीने के बाद तो होश भी नहीं रहता और वो क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता है। Orgies will happen. सब ये गलत काम जैसे आपने लिखा है लीला क्रीड़ा ये सब तो होने ही वाला है। Okay, which is even common now. और ये हम देखते हैं आज भी। Even these things we see on the internet, mobiles and all those things. हम इन बातों को इंटरनेट पर भी देखते हैं, मोबाइल पे भी देखते हैं। Recently I had to remove my Facebook from my mobile. और हाल ही में फ्रैंकी को अपना फेसबुक निकालना पड़ा अपने मोबाइल से। And I found it is so dirty things in those. और कितने गंदे चीज है उसमें। And he's saying and if you hear recently about Shilpa Shetty's husband. हाल ही में अगर आपने सुना ही होगा शिल्पा शेट्टी के पति के बारे में। He was involved in making pornography. और वो वो ऐसे गंदे पिक्चर्स बनाते थे। These things are very common. ये आम बात हो चुकी है। It is not just in Romans, they used to do in a very public, but people are still involved in this world now. रोमियो के शहर में ये बातें भी होती थी तभी और आज की तारीख में यही बातें आज भी हो रही So how as believers has to live a holy life? विश्वासी लोग हैं, हमें एक पवित्र जीवन कैसे जीना है। And the second thing he says here is not in sexual immorality and debauchery. फिर पौलुस लिखता है 13वां वचन में, ना व्यभिचार और लुचपन में। What is meant by debauchery? It is indulging in drugs and alcohol and in sex again. और ये लुचपन क्या है? इसका मतलब यही होता है कि हम नशा करते हैं, पियक्कड़ बन जाते हैं, व्यभिचार करते हैं। Even homosexuality is common. और ये एक लिंग के साथ रिश्ता रखना, ये भी शारीरिक रिश्ता रखना, ये भी आम बात हो गई है। And I was in a discussion group of so many people like atheists, Hindus, Muslims, and and very secular kind of people. और फ्रैंकी एक चर्चा में एक भाग थे कि बहुत सारे लोग थे उसमें जो लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, हिंदू थे, मुस्लिम थे, बहुत सारे लोग थे उसमें। And they're saying you have to accept homosexuals. और उन लोग सब की यही विचारधारा थी कि आप लोगों को ये जो एक लिंग के साथ जो शारीरिक संबंध रखते हैं ऐसे लोगों को हमें स्वीकारना है। Nowadays the secular people talk about it. आजकल जो हम देखते हैं दुनिया में ये बातें आम हो गई है और वो बात भी करते हैं इसके बारे में। It is a new norm in our culture. जैसे कि ये एक नया चीज है और नई बात है, हमारी संस्कृति का एक भाग हो गया है। Having extramarital relationship, having relationship before marriage. व्यभिचार करना, शादीशुदा होके भी दूसरे के साथ रिश्ता रखना, शादी के पहले दूसरे के साथ रिश्ता रखना। So he's saying leave all this. और पौलुस यहाँ पे कह रहा है इन सब बातों को हमें छोड़ना है। And then he talks about dissension
and jealousy. और फिर वो बात करता है झगड़े और डाह के बारे में। Oh, where there is no quarrel. आप सोचो कि कहाँ पे झगड़ा नहीं होता है। Dissension means fighting and dispute and quarrel. मतलब हम झगड़ा करते हैं, वाद विवाद करते हैं। So we are living in time where there is lot of quarrel, lot of fighting and dispute. हम ऐसे समय में जी रहे जहाँ पे झगड़ा करना, वाद विवाद करना आम बात हो गई है। And he's saying jealousy, leave jealousy. और पौलुस कह रहा है कि डाह को हमें पीछे छोड़ना है। What is jealousy means? It is wanting something that, somebody else have something, I also want that. डाह का मतलब क्या है? हम जलते हैं कि हम देखते हैं कि दूसरों के पास ये है तो हमें भी वही चाहिए। Never satisfied. कभी भी तृप्त नहीं होते हैं So हम। how we have to live a holy life? तो हमें एक पवित्र जीवन कैसे जीना है? He says in verse 14, 14वां वचन में वो कहता है rather clothe yourself with Jesus Christ. कि यीशु मसीह को पहन लो। So now, when he's talking about, wearing something. यहाँ पे पौलुस हमसे कहता है कि हमें कुछ पहनना है। That means first we have to remove the dirty clothes. लेकिन कुछ नया पहनने के लिए पहले के जो गंदे कपड़े हैं उसे तो निकालना है। And like you have a bath every day. जैसे कि तुम हर दिन नहाते हो। Hope you all bath every day. आशा करते कि सभी लोग रोज नहाते हैं। We have to have a bath every day. हम सबको रोज नहाना है। Okay. And every day our clothes get dirty. हर दिन हमारे जो कपड़े हैं वो गंदे हो जाते हैं। So I am wearing this shirt. गंदा नहीं। I am wearing this. ये शर्ट पहन रहा है। The whole day I am wearing this shirt. पूरा दिन उन्होंने ये शर्ट पहन लिया। Evening what I will do? शाम को वो क्या करेंगे? I am removing my. Hope you can see I am removing my shirt. Okay. कि अपने शर्ट को निकाल रहा है। I need to have a bath कि now. उन्हें नहाना है। Okay, I have to have a bath. जाओ नहाने के लिए जाओ। Okay, and have a bath. और टैंकी नहा चुके And I take my new shirt. और अब उन्होंने नया शर्ट पहन All लिया। ironed well, okay. अच्छे से इस्त्री करके रखा है। And I am wearing this new shirt. अब उन्होंने ये नया शर्ट पहन लिया है। Okay, I am wearing this new shirt. Okay, this is what Jesus have asked us to do. यही तो पौलुस ने कहा है हमें करने के Every लिए। day we get dirty. हर दिन हम गंदे हो जाते हैं। Every day, we do sin in our life. हर दिन हम पाप करते हैं। And we need to cleanse ourselves. We need to have a bath. इसीलिए हमें अपने आप को शुद्ध करना है, नहाना है। Verse Colossians, it is written very beautifully. कोलोसियों में बड़ी सुंदरता से लिखा है। Colossians chapter 3 verse 8 to 11. कोलोसियों का 3रा अध्याय 3रे वचन से 11वें वचन तक। I don't have time to read that. It talks about take off your old clothes of old character, old habits. और लिखा है कि आप अपना जो पुराना जो आदतें हैं, जो काम है, जो गंदे काम है उसे निकाल दो। And put on your new clothes. और फिर नया मनुष्यत्व को पहन लो। The new character of Christ. जो परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव है। And how you do that? अब कैसे करना है हमें ये? And in verse 14 it talks about take the armor of light. और 14वां वचन में रोमियो का 13वां अध्याय 14वां वचन में लिखा है कि हमें जो है 12वां वचन में लिखा है कि हमें ज्योति के हथियार को बांध लेना है। Taking the clothe yourself with Jesus Christ. और ये भी लिखा है 14वां वचन में कि हमें यीशु प्रभु को पहन लेना है। What is the armor of light? और ये ज्योति के हथियार क्या है? In Ephesians chapter 6 verse 13 to 17 talks about we need to take the armor of God. We are taking Jesus. ये ज्योति के हथियार क्या है? इफिसियों के 6 अध्याय में लिखा है कि कैसे हमें परमेश्वर के हथियारों को पहनना है। We take the helmet of salvation, breastplate of righteousness. हमें उद्धारता का टोप पहनना है, धार्मिकता का जिलम पहनना है। Belt of truth around us. सत्य का कमरपट्टा पहनना है। These are all Jesus. We are taking these. ये क्या कर रहे हैं हम यीशु मसीह को पहन रहे हैं। Every day we need to spend time with God. हर दिन हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है। We need to, as we spend time with the Lord,
we go through a bath and change of और clothes. जैसे हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम नहा रहे हैं, पुराने जो बातें हैं उसे हम शुद्ध हो रहे हैं और हम यीशु मसीह को पहन रहे हैं। You know, this is how we live a holy life. ऐसे हम एक पवित्र जीवन को जीते हैं। So I want to conclude by saying तो अंत में मैं कहना चाहूंगा, we are on a pilgrimage on this earth. हम एक यात्रा पे है, हम ये पृथ्वी पे है। We each one are approaching our last days. हम जल्द से जल्द उस दिन के और निकट आ रहे हैं जो हमारा अंतिम दिन है। You know, it is not talking about, it is about the coming of Jesus as well as our end as a life. हाँ, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो फिर से आने वाला है, लेकिन ये बात भी है कि हमारा जीवन जो है उसका भी एक अंत होने वाला है। You know, and we are not different from Roman people. और जो रोमियो के लोग से हम कुछ ज्यादा, हमारा कुछ फर्क नहीं है, हम वैसे ही है। And we are maybe worse than that. शायद हम उससे भी बेकार है। You know, we are called to live a life showing love to one another. हमें बुलाया गया है ताकि हम ऐसा जीवन जी सके कि हम एक दूसरों को प्रेम करें, Sharing the love of और Jesus to यीशु others. मसीह के प्रेम को भी बांटना है दूसरों के साथ। And by hating sin and we fulfill the law. और पाप से हमें नफरत करना है और ऐसे करके हम व्यवस्था को पूरा करता है। And living a holy life by removing our old clothes and putting on new clothes. और हमें अपने पुराने जो वस्त्र है, जो कपड़े है, वो निकालना है और यीशु मसीह को पहनना है, हमारे नए कपड़ों को हमें पहनना है। That means our old, habits and sinful nature we need to leave and live a new life. हमारी जो पुरानी आदतें है, गंदी बातें है, पाप है, उसे निकालना है और एक नया जीवन यीशु मसीह के साथ जीना है। God bless you. परमेश्वर हर एक को आशीष दे।